آیا ہوں تاکہ ہم کچھ گپ شپ کر لیں. میں نے اپنی تمام باتیں آپ کے محبتوں کے سمندر میں کر لی ہے. میں مانتا ہوں میں نے خود پر تھوڑا قابو نہیں رکھا. تھوڑا سا قابو نہیں رکھا تھا؟ تمہارے انصاف کا شکریہ. تم نے تو برے بھلے جملے کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہ بھی میری جاریہ کے سامنے. ہائے تم گونگے ہو جاؤ مختار. عاشق کو معشوق کے سامنے حقیر کرنا موت سے بدتر سزا ہے. اب جب تم رو رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ غیرت باقی ہے تم میں. اس کا مطلب ہے ہم دو مردوں کی طرح گفتگو کر سکتے ہیں. اچھی طرح کان کھول کر سن لو عمر. میں آج رات تمہارے تمام تر ان قتل و غارت کے جرم جو تم نے آج تک کیے ہیں تمہاری موت کا سامان کر دوں اور تمہارا ملک الموت بن جاؤں. اور یہ بھی کر سکتا ہوں کہ حاکم مدائن کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ تم نے اس کال کوٹری میں اپنے سیاہ اور پلید چہرے کے آئینے میں اپنے اعمال کو دیکھا ہے اور استغفار کر لیا ہے اور اپنے چھوٹے بڑے گناہ کا اقرار کر کے ایک آسمانی معرفت کی طرف بڑھ گئے ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. اب مرضی تمہاری ہے. کیا کروں؟ صبر کرنے والوں جیسا چہرہ بنا کر مت دکھاؤ مختار. مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کس نیت سے سفید محل آئے ہو اور کیسے آئے؟ میرے ہاتھ پاؤں کھولو تاکہ آرام سے بات کر سکیں. تمہارے ہاتھوں پیروں میں زنجیر ڈالی گئی ہے، زبان میں نہیں. اگر میں بات ہی نہ کروں تو؟ منصور نالبند کے بیٹے کو تمہارے ساتھ یہاں تنہا قید کر دوں گا اور گورکن سے کہہ دوں گا کہ یہاں ایک حسین سی قبر بنا دے. کیسا رہے گا؟ یہ منصور نالبند کون ہے؟ ملزم ہمیشہ بھول جایا کرتے ہیں. آخر تم نے اتنے بے شمار ظلم کیے ہیں کہ تمہیں واقعاً یاد نہیں آنا چاہیے. منصور نالبند کا بیٹا اس اغوا شدہ منصور نالبند کی بیٹی کا بھائی ہے جس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی. اس کا ہاتھ تجھ تک نہیں پہنچ سکا تو تمہارے گندم کے انبار کو آگ لگا دی. وہ اس وقت زمینوں کو آگ لگانے کے جرم میں زندان میں پڑا ہوا ہے، مگر اس کے دل کا داغ ابھی تک بالکل تازہ کا تازہ ہے اور خدا خدا کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اسے عمر سات کی زیارت ہو جائے. میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہو. منصور نالبند کا بیٹا تمہیں مار ڈالے گا اور بڑے فخر اور غرور کے ساتھ تمہارے قتل کو اپنے سر پر لے لے گا، اور پسر سعد ابی وقاص سردار فاتح ایران کا بیٹا ایک ناموس کے الزام میں دار فانی کو ودا کر دے گا. اور فاتحہ. بولو کیا رائے ہے تمہاری؟ کیا چالاک انسان ہو. بہت خوب، تم جیت گئے. معاویہ حق رکھتا ہے کہ تم سے اور تمہارے چچا سے ڈرے. تمہاری علی کے بیٹے سے حمایت اس کا کام دشوار کر رہی ہے. یقیناً اس نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم اس کے دشوار کام کو آسان کرو. یہ ایک احمقانہ تہمت ہے. میرے کچھ ارادے تھے مگر میں معاویہ کا بھیجا ہوا نہیں تھا. نہیں، بظاہر تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. تمہارا اقرار کرنا میرے چچا کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے جو ایک پرانے سیاستدان ہیں، مگر میرے لیے صرف وقت ضائع کرنے کی بات ہے. بہت مناسب موقع ہے میرے لیے تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہاری مزاحمت کاریوں سے جان چھوٹ جائے. میں معاویہ کا بھیجا ہوا تھا، سفید محل میں آیا تھا تاکہ علی کے بیٹے کو قتل کر دوں. اب صحیح ہے؟ تمہیں یہی چاہیے تھا نا؟ یہ ایک مضحکہ خیز اقرار ہے کہ تم اکیلے محل میں آئے ہو تاکہ علی کے بیٹے کو جو کہ ایک فوج کے حصار اور حفاظت میں ہے قتل کر دو. کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا. خدا کی لعنت ہو شیطان پر. شیطان پر کیوں؟ تم پر جس نے بیچارے شیطان کے بھی ہاتھ باندھ دیے ہیں. مختار،
मैं मुआविया की तरफ से महल नहीं भेजा गया। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ मंसूर नालबंद के बेटे से जो बात करनी है करो। मैं सफेद महल में आया ताकि सफेद महल के कल्ब यानी तुम्हें यानी सदफिर मुख्तार को राजी करूं जो इराक की बादशाही का ख्वाब लिए हुए है। उसे समझाऊं कि अपना हाथ अली के बेटे के फटे हुए दामन से हटा ले और ये फुर्सत हाथ से ना जाने दे। मुआविया ने अपनी बेटी का अली के बेटे के बदले में वादा किया है मुख्तार, मुआविया का दामाद बनना यानी इराक की बादशाही। मगर तुमने इन सब हंसी मजाक और फजूलियात से सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इस रिश्ते से तुम्हें क्या फायदा होगा? बहुत सी चीजें, सबसे छोटी चीज जारिया है। अभी भी देर नहीं हुई मुख्तार, खुदा की कसम तुम्हारी और तुम्हारे चाचा जान की लड़ाई बेफायदा है। मुआविया मदाइन पर हमला करने वाला है और कोई भी उसका रास्ता रोकने वाला नहीं। इराकियों ने मैदान खाली कर दिया है। मैं तो जानता हूं कि बचपन से ही तुम्हारे मीठे ख्वाबों में से एक इराक की बादशाहत थी। कब तक अपने आप को जमीन, भेड़ों और खेती बाड़ी से जोड़कर रखना चाहते हो? तुम 40 साल के हो गए हो। अगर आज जल्दी नहीं करोगे तो कल देर हो जाएगी। इससे पहले कि कोई और पहल करे, हम हसन को मुआविया के हवाले कर दें। हम तो उसे कत्ल नहीं कर रहे, मुआविया भी उसे नहीं मारेगा। मुझे यकीन है कि मुआविया चाहे अवाम को फरेब देने के लिए ही सही, अगर अपने हाथों को रसूल अल्लाह के बेटे के खून से नहीं रखेगा, और मैं चाहूं तो मुआविया से हसन के लिए अमाननामा ले सकता हूं। मुंह बंद कर। इसी वजह से बचपन से अब तक तुमसे नफरत करता हूं। तुम हमेशा खुद को अक्ल कुल और मुझे अहमक समझते थे। तुम्हें लगता है ये सब बातें मुझे पता नहीं होंगी? हिम्मत है तो मेरे हाथों को खोलो, फिर तुम्हें दिखाता हूं कि तुम सिर्फ हवा के गुब्बारे हो। कैसे काली रात है, हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें सुन रही हूँ। मुझे डर है नारिया, कहीं उमर सजा को बर्दाश्त न कर पाए और सारे राज खोल दे। किस फितने का इरादा था तुम्हारा फितनागर? उमर कौन से राज खोल देगा? हाँ, हाय खुदाया, उसे पता चल जाए कि हमने कौन सी साजिश की है तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो हाल करेगा कि हमने सोचा भी ना हो। कौन सी साजिश जारिया? क्यों इतनी खौफजदा हो? तुम तो इस तरह बात कर रही हो कि मुझे भी डर लग रहा है। कुछ तो बताओ, ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हारे और उमर के दरमियान है और मैं बेखबर हूँ? हरगिज नहीं। कौन सा राज नारिया? जो कुछ था तुम जानती हो। इतनी परेशान क्यों हो? तुमने नहीं देखा कि उमर पे तोहमत लगाई गई है कि वो मुआविया का भेजा हुआ है और यहाँ जासूसी के लिए आया है? कबूल किया है तो फिर हमें इससे क्या? किसने उसे सफेद महल आने के लिए मदद की? नारिया ने, मेरी प्यारी भाभी ने, मुख्तार की नाजनी बीवी ने। तुमने अपने गुलामों के लिबास में उसे महल के अंदर आने में मदद की है। मेरे दामन को गंदा मत करो आस्तीन की साहब। मुझे ये अंदाजा तक नहीं था कि उमर जासूसी के लिए आ रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारी तलब में आ रहा है। खुदा मेरे ताले को जला दे। मैं सवाब कमाना चाहती थी, खुद कबाब हो गई। अब कौन सी खाक उड़ाऊं सर पे? वाकई ये तो हारून है, नालबंद का बेटा। बहुत खूब जनाब हारून इब्न मंसूर, आप पे सर साद को मारना चाहते थे ना? जनाब वाला, आधी रात को मुझे जगाकर तरह तरह के सवालात पूछ रहे हैं। हमने सुना था कि मदाइन का हाकिम ऐसा आदिल हुक्मरान है कि जो सलमान फारसी की तरह हुकूमत करता है। उसके लिए भेड़ और गाय दोनों बराबर हैं। किसी मजलूम का हक पामाल नहीं होता। बिला मुबालगा बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। तो फिर क्यों रात के इस पहर मुझ पर जफा कर रहे हो? अगर मेरा जवाब दे दो तो इस बेवक्त की मुजाहिमत का सबब जान जाओगे। मैं उमर साद को मानना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसकी इज्जत लूटना चाहता था। मेरी उम्र का एक दिन भी बाकी रह जाए तो मैं ये काम करूंगा। उसकी औकात 2 कौड़ी की कर दूंगा। उसके बाद मेरी सजा में अदालत जो भी हुक्म कर दे परवाह नहीं। मुझे कोई खौफ नहीं कि फिर मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। शायद कल रात तुम्हारा अरमान पूरा हो जाए। कसम से। शायद दरवाजे के पीछे खड़े हो जाओ, मैं बुलाऊंगा तो आ जाना।
मुख्तार, दरवाजे की कुंडी लगा दो। क्या फरमाया आपने? दरवाजे की कुंडी लगा दो चालाक आदमी। मुमकिन है मेरी आवाज पहचान कर बिगड़ जाए। तुमने देखा नहीं मुझे कैसे मशकूक नजरों से देख रहा था। मुख्तार मेरी जान, तुम होश और अक्लमंदी में सबसे अफजल हो, आलिम और जिन्हों इनसे बढ़तर हो। मुझे क्या इकरार करना होगा? कैसे और किसकी मदद से महल में दाखिल हुए? सलीमा पूरा को जानते हो? वही अदाओं से दिल लुभाने वाली हमारे बचपन, जवानी और सरे बलूग के दौर की। इस महल में दाखिल होना उसके पास जाने से ज्यादा आसान तर है। तुम्हारे कुछ कसम खाए हुए साथी हैं जो इस महल में हैं। मैं उन सबके नाम सुनना चाहता हूं। क्या ये मुमकिन है कि वो अपने इश्क से बेवफाई करे? अगर तुम्हें बेच दे मतलब उसने मुझे बेच दिया है। जिस मुख्तार को मैं जानती हूँ वो पत्थर का भी मुंह खुलवा देता है। काश हमने उस बदकदम ईरान की तौहीन ना की होती। काश हमने उससे मेहरबानी की होती। कियान से बदसलूकी ने मुख्तार को आशफ्ता कर दिया। मुख्तार गुस्से में नहीं आता तो उमर से भी मामला खराब नहीं होता। बात घुमा दो। कह दो कि गुलाम के लिबास को चुरा लिया है। कह दो कि गुलाम को खरीद लिया है। मैं कैसे बात को घुमा दूं अगर उमर इकरार कर ले? कह दो उमर बकवास कर रहा है। कहो कि उमर ने अपने इश्क को मुख्तार का असीर पाया तो उसने चाहा होगा कि किसी साजिश के तहत मुख्तार के इश्क को फंसा दे। मुख्तार तुम्हारा आशिक है, वो यकीन भी कर लेगा। अगर हमने उसके गुरूर को जख्मी किया होगा तो वो अपने इश्क का सर कलम कर देगा। तुम्हारे इश्क का खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। खुदाया मेरी मदद कर। एक चमड़े की मुरक्कब चटाई और चंद सौ जानवर के खाले लाओ ताकि मेरे साथ देने वालों का नाम लिख सकूं। सफेद महल के तमाम खुद्दाम सिवाय तुम और तुम्हारे चाचा जान के और तुम्हारे हकीर साथियों और सरदारों का कुछ गिरोह जो अली के बेटे के मुहाफिज हैं। अलबत्ता मैं खुद अपनी महारत से महल में आया हूं, एक जनाना लिबास और कुछ चलने के मखसूस जनाना नाज़ो अंदाज के साथ। अली की हुकूमत में शरअन जायज नहीं है कि मर्द औरतों की तफ्तीश करें, तो मैं भी उसी दरवाजे से घुस आया। यहां तक कि दरबार ने भी अदब से सर झुका लिया। क्या कायल हो गए या मजीद दलील और सबूत चाहिए? ऐसी घटिया मकारी से तो जैसे बगैरत और नामर्द शख्स से मुमकिन है। तेरा मर्दों वाला नाम असल मर्दों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बहुत खूब बिन्ते साद, तुम्हारे जिस्म और लिबास में सुर्खाब के पर नजर नहीं आ रहे। रक्कासाओं की तरह ठुमके लगाकर अपनी उसी सलीमा पूरा की तरह एक इशरत कदा खोल कर नाचोगी तो बहुत अमीर हो जाओगी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत ये कि बनी उमैया के आस्थाने पर भौंको। बकौल तुम्हारी ये भी वो रस्सी है जो मेरे इश्क ने मेरे गर्दन में डाल दी है। मुझे कबूल है, ये गम अंगेज है। मैदान के शहर से मोहब्बत करना सुराख का चूहा बना देता है मुख्तार। मैंने जो कुछ किया जारिया की खातिर किया है। उम्मीद है मर्दानगी दिखाओगे और मेरे इस राज को जारिया पे फाश नहीं करोगे। जारिया मेरे लिए मर चुकी है। जारिया तुम्हारे लिए मर गई है, मगर अपने आप में वो एक आजाद परिंदा है जिसने मुख्तार की कैद की सलाखें तोड़कर परवाज कर ली है। कुछ भी हो सकता है, शायद मैं उसे अपने इश्क के तीर से शिकार करूं। ऐसे खाम ख्याली में रहो। अब तुम्हारी कौन सी पहेली हल नहीं हुई? तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुमने सुन लिया है। तुम्हारी बातें मेरे चाचा के काम आएंगी ताकि वो इसके बाद और अच्छे शिकारी बन जाएं और उसके दुश्मन फिर कभी शरीयत के दरवाजे से उन पर हमला न कर सकें। मगर हम दोनों के आपस के हिसाब किताब अभी बाकी है। हम दोनों में कैसा हिसाब है? हम दोनों के बाप तो ईरान के दोफादे सरदार थे। कसम बखुदा उनकी रूहें कब्र में लरस जाएंगी कि जब वो देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये कौन सी अंधी दुश्मनी है मुख्तार? तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत किसी चीज को नहीं बदलेगी। हसन उसी अदालत का बेटा है जो कहती है कि सरदारों को अवाम की दस्तरस में होना चाहिए। वो अदालत जो लोगों पे तकिया करती है।
लोगों पर एतमाद का नतीजा यही होता है कि जिसके खलीफे को हम देख रहे हैं उसी के खेमे पर टूट पड़ते हैं, उसे लूट कर भाग जाते हैं, उसकी तकरीर को खराब कर देते हैं और बाद में उसकी जान ले लेते हैं। तुम क्या सोचते हो मैंने उस ग्रोह से क्यों अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए? बनी उमैया और बनी हाशिम तो एक कौम और कबीले से हैं और तुम और तुम्हारे चाचा जान दोनों अलग ग्रोह से हो। मुझे यकीन है कि कल जब हसन बिस्तर बीमारी से उठेगा तो तुम्हारे जालिमाना तरीके पर तुम्हारा मुआखजा करेगा। क्यों फजूल में जोर लगा रहे हो मुख्तार? मुझे तो पता है कि तुम अपने दिल में मेरे साथ मेरे हमअकीदा हो। अपने बीमार दिल की नियतों को मुझसे निस्बत मत दो। मैं तुम्हारी जात को खूब पहचानता हूं। किताब खाना और जंग की मशक भूल गए? हमेशा हमारा उस्ताद समझाया करता था कि बच्चों जब भी मुख्तार सरदार बनना चाहे तो मानना, वो हुक्म के लिए खल्क नहीं हुआ है। तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे, मुझसे नफरत करते थे। एक बार तुमने मेरे दांत तोड़ दिए थे, एक बार मेरे पांव का गोश्त जगह से हिला दिया था, एक बार तो मेरी गर्दन तोड़ने वाले थे तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में ऊंची परवाज और जाह तलबी देखी है मैंने। तुम्हारा गुरूर और चाह तलबी क्या मुझसे कम है? हम दोनों अपनी आरज़ुओं और ख्वाबों की तमन्ना दिल में लिए रह जाएंगे। इसीलिए तो मैं तुमसे नफरत करता हूं। कहां जा रहे हो चचाजाद भाई? कम से कम मेरे हाथों को तो खोल दो। हर दिमाग मुख्तार, अबू बैद सखफी के बेटे, फातिहा। उसने दरवाजे को लात नहीं मारी। तुमने देखा नारिया, उमर के मुंह में ऐसा कुफ्र लगा हुआ है जिसकी चाबी जारिया की निगाहों का जादू है। मुख्तार, हाँ, खाना नहीं खाओगे? रात को तुम लोगों के हाथ का पका हुआ काफी हद तक खा क्या लिया। तुम जारिया से नाराज हो? जारिया आज रात से एक अजनबी है इस घर में। रात की आन के साथ उसका बर्ताव मेरे साथ रिश्तेदारी से इनकार है। जारिया भी एक बच्ची है मुख्तार। नारिया, अब मैं हरगिज़ उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, यहां तक कि तुम्हारे मुंह से भी नहीं। ज़रबी कहाँ है? मुर्गियों के पिंजरे के पास है, सो गया होगा अब उसे तक। जगा दो, मैं थका हुआ हूं, कुछ मालिश करवाना चाहता हूं। मैंने मन्नत मानी है कि अगर आज की रात बखैर खूबी गुजर जाए तो एक दुम्बा कुर्बान करूंगी। बकवास। बड़ी उछल रही हो ऊपर कटी मुर्गी। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मुख्तार ने तुम्हें खामोश जुबान के साथ भी तुम्हें तुम्हारा मकसद दिलाया। आज रात से तुम अपनी उम्र जान के ख्यालात सजा सकती हो। उमर को आजाद कर देगा? शायद। मुख्तार उस वक्त थका हुआ होता है जो वो किसी मैदान से हारा हुआ आता है। गलती नहीं कर रही तो बाजी उमर जीत चुका है। तुम शेर और चीते के शिकारी हो। इस मुट्ठी भर गिद्धों की जमात की मिसाल ऐसी है कि जब तक किसी गधे की आवाज ना आए ये लोग शोर करते रहते हैं। खुदा की खुदाई की कसम, ऐसे ही कुछ गीदड़ों की आवाज ने शब की तारीकी में इमाम मुश्तबा अली शेर खुदा के फर्जन को जमीन बोझ कर दिया। तुम भी जाओगे तो जख्मी हो जाओगे। तुम्हारे जिस्म पर जख्म न लगा सके तो दिल पर जख्म लगा देंगे ये लोग। रात को जब तुम्हारी और उमर की लड़ाई हुई तो मैं बानो के हुक्म पर चचा को बुलाने गया तो वहां मैंने जनाब कमर को देखा। जानते हो किस गमगीन दिल के साथ इमाम मुश्तबा से बातें कर रहे थे और रो रहे थे। मेरा दिल चाहा कि उनके पास बैठ जाओ और जी भर के रो। कम्बर? कौन सा कम्बर? कब्बर गुलाम अली।
अंबर मैदान में क्या कर रहे हैं? बानो के साथ आए हैं। ज्यादा? जी, इमाम हसन की जोजा। ज्यादा दुख्तर आशाते इब्ने कैस कंदी? जी, वो आई हैं। इमाम हसन मुज्तबा की जियारत करने आई हैं। मानता हूं भालू का एक बाल तोड़ना भी गनीमत है। यानी हम भालू हैं हजरत वाली? जरबुल मसल में कोई मुनाक्शा नहीं होता सुल्तान सखावत। एक गाड़ी गंदुम का ढेर और एक गाड़ी जौ का ढेर आप जैसे दरिया दिल इंसान के लिए एक बाल के बराबर है। आप इजाजत देते हैं कि हम इस बाल बराबर माल को अगले साल के ज़कात के गल्ले से माफ करवा लें? आप लोगों के हुकूमती वाजबात में लिख दूंगा। शरई वाजबात को पहले तो नहीं दिया जाता मर्द मोमिन। अब तक जाग रहे हैं चचा जान? हम इन हजरात को मक्खन लगा रहे थे कि कुछ थोड़ा बहुत खाना साबात के लश्करियों के लिए भिजवा सकें। तुमने क्या किया मेरी जान? पिसर साद ने कुछ इतराफ किया? जी, एक औरत के लिबास में महल में दाखिल हुआ है। ताज्जुब है, कैसे नीच जानवर हैं। अब हमें कुछ औरतें भी दरवाजों पर खड़ी करनी होंगी ताकि वो खवातीन की तलाशी लें। सुना है इमाम की ज़ौजा आई हुई हैं? हाँ, बानो ज्यादा आई हैं। एक सालिहा और दिल सोस खातून है। रास्ते की दुश्वारियों को सहकर यहां तक आई हैं ताकि इमाम की तीमारदारी कर सकें। कुछ हद तक मुझे सुकून हासिल हुआ है। मौला के घर वालों में से भी किसी को यहां होना चाहिए था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? कब? इसी वक्त। रात के इस पैर क्या जरूरत है मुख्तार? अशाद इब्ने कैस बानू चाहदा का बाप और उम्र साद दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती है और दोनों मुआविया के बावसूक अफराद में से हैं। मुमकिन है कि बानू चाहदा के सफेद महल आने में और उम्र साद के आने में कोई मिला जुला ताल्लुक हो। इस्तग़फ़ार करो मुख्तार, हद से ज्यादा बुरी नजर रखना जायज नहीं है। ज्यादा इमाम की ज़ौजा है, उनका और उनके वालिद का रास्ता जुदा है। चाचा जान, मेरे पास भी इन साले और दिलसोज औरतों में से एक मौजूद है, दुख्तर समरा इब्न जुंदब। बाज़ औक़ात उसकी जाहिलाना हरकतें मुझे हैरान कर देती हैं। हमें इस किस्म की औरतों की दोस्ती पर खास तौर पर मोहतात रहना होगा। रात के इस पहर में मुलाकात का क्या बहाना निकालूं? जब वो आई थी तो काफी थकी हुई थी। शायद इस वक्त वो सो गई हों। भैनक भी पड़ गई कि उन पर शक कर रहे हो तो? मैं बानू जादा से कोई तोहमत आमेज सवालात नहीं करूंगा। हमें इस तरह बात करनी होगी कि बानू जादा हमें अपना महरम असरार समझें और हमदर्द माने। वो दर्द दिल बताएंगी, मैं छुपे हुए राज को समझ लूंगा। कम से कम सुबह की नमाज तक सब्र करो। बहुत खूब, कोई और चारा नहीं, मैं इंतजार करता हूं। तो मुख्तार सकफी आप हैं? जी बानू, मुझे फख्र है कि बानू ने इसने दुखुल दिया और बंदे की हाजिरी कबूल कर ली। मरान के सफेद महल आने पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। खुश आमदीद। खुश होना, वो भी बेहयाओं और नामर्दों के दयार में। जान के बदले और कोई कीमत नहीं। जब मैंने मुश्तबा को आखिरी बार देखा था तो मैंने कहा था कि खुश आमदीद सिब्ते पैगंबर, खुश रहिए। तो मुश्तबा मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारा खैर कबूल है।
कि तुम मेरे लिए मौत की तमन्ना कर रही हो। अजीब किनाया है। मुझे मौला अली के फुस्त और रब्बुल काबा की याद आ गई, जिसके आलम मलकूत पर नजर होती है वो आलम नासूत को अपनी नजर में हकीर जानता है। आसमानी फरिश्तों का हल्का कहाँ और दीवाने हाकिम का हल्का कहाँ। जनाब फरमा रवा से सुना कि आप किसी जरूरी काम के लिए आ रहे हैं। कहिए, मैं सुन रही हूँ। जबरन तौफीक मिली के पिछले हालात में शहर मदाइन का जिम्मा और इमाम की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी इस हकीर के कंधों पर डाली जाए। किसने आपको मजबूर किया? मेरे चचा जनाब फरमा रवा ने। जब इमाम को बेहोशी की हालत में महल लाया गया तो चचा ने मुझे बुलाकर कहा कि काबिल एतमाद लोगों की नस्लों को टिड्डियां खा गई हैं। मैंने भी मजबूरन लब्बैक कह दिया। जो शख्स जबरन किसी मसनद पर बैठता है तो उसे परवाह नहीं होती। जो शख्स कराहियत के साथ खिदमत करता है उससे बैद नहीं है कि कमी पेशी करे। रसूल खुदा के फर्जंद की जान की हिफाजत करना उन लोगों का काम है जो दिल से खुदा से मामला कर बैठते हैं। बहुत फसीह और बलीग बातें करती हैं आप। मेरे मना करने की दलील अंदर के शैतान से खौफ है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में आ जाए जो बड़े शौक और ज़ौक के साथ आते हैं ताकि खुदा के साथ मामला करें, मगर हजरत इब्लीस की दुकान पर नजर आते हैं। अमन और अमान की जिम्मेदारी लेने से पहले क्या करते थे आप? खेती बाड़ी करता था बानू। जंग सिफ़ैन के बाद मदाइन आ गया और खेती बाड़ी को अपना पेशा बना लिया। आपको मुझसे क्या काम था जनाब मुख्तार? यकीनन आप जानती होंगी कि मुआविया ने इमाम के सर के लिए 1000 शामी दिनार और एक बेटी देने का वादा किया है। जी, मैंने सुना है। बहकाने वाला वादा है। इस वादे ने नाचीज का काम इस कदर दुश्वार कर दिया है कि मुझ पर नींद और खुराक दोनों हराम हो गए हैं। मेरी पलक झपकने के बराबर गफलत भी शियों को किसी बहुत अमीर गम में मुब्तला कर सकती है। मेरी कौम और कबीले की 40 साल आबरू खत्म हो जाएगी। जैसा कि बानू मदाइन में रहने का इरादा रखती हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि इस खतरनाक वजीफे में मेरी मदद करें। अंधा और क्या चाहें, बस 2 आंखें जनाब मुख्तार। मुझे क्या करना होगा? यूं समझिए कि इस महल के अशरात हज़बी दुश्मन के कारिंदे हैं। यूं समझिए कि जैसे महल के मक्खी और मच्छर वगैरह के डंक भी जहर से भरे हुए हैं। मेरे चचा जनाब फरमा रवा से मशवरा किए बगैर किसी से भी दीदार न कीजिएगा। सिर्फ वो खाना इमाम को खिलाइएगा जो मेरे चचा के हाथों से लें। यानी खतरा इस हद तक बढ़ गया है? अफसोस है कि हाँ। कल रात दुश्मन के जासूसों में से एक को हमने पकड़ा है जो औरतों के लिबास में इस महल में दाखिल हुआ था। एक काफी मोतबर नाम है। मुआविया के वादे की लालच में अपनी मर्दानगी से भी गुजर गया। शायद आप उसे जानती हो। उसका नाम उमर इब्न साद अबी वकास है। उमर इब्न साद अबी वकास? हाँ, अरब के जहांगीर सरदार का बेटा। दुनिया की हवस परस्ती पर लानत हो, जो शराफत और मर्दानगी की तजलील करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अरब अपनी इज्जत का सौदा कर सकते हैं। मैंने अब तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, मगर इस खबर ने मुझे आज खौफजदा कर दिया है। मुख्तार, इमाम हसन के पास सिवाय औहदा खिलाफत मुआविया के हवाले करने के और कोई रास्ता नहीं बचा। अब आप क्या करना चाहेंगी बानो? मुझे हसन से बात करनी होगी। मुझे उन्हें कहना होगा कि सुलह कबूल कर लें। मुआविया को फारिक कुरैश से बदतर तो नहीं।
रसूल अल्लाह का कुफारे कुरैश से सुलह करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज हसन और मुआविया का तनाज़ा है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्दी मत कीजिएगा बानो। ज्यादा खून बह जाने और कमजोरी के बायस शायद इमाम ये नागवार खबरें बर्दाश्त न कर पाए। सुलह की बातें ऐसी ज़रबत की मानद हैं जो ज़रबत खंजर से ज्यादा मोहलिक हैं। 1-2 दिन सब्र कीजिए ताकि उनकी हालत बेहतर हो जाए। उस जाहिल जमात का खाना खराब हो के उन लोगों ने मेरी आरजुओं को हसरत बना दिया और मेरे ख्वाबों के महल को वीरान कर दिया। उसे छोड़ दें, खुदा के लिए उसे छोड़ दें। मुआविया उससे ज्यादा रहीम है कि रसूल खुदा के जख्मी नवासे पर तलवार चलाए। खुदा के वास्ते इससे ज्यादा जंग के नकारे उनके कानों में ना बजाएं। ऐसे तेज घोड़ों पर बैठिए कि जैसे हवा पर सवार हो। कम से कम सोइए और ज्यादा से ज्यादा दौड़िए। हमारे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। तुम शूश और तुम आवाज चाहो, और आप दोनों जल्द अज जल्द इराक के हजम तक पहुंचिए। जवाब के बगैर मत आइएगा। याद रहे कि किसी फर्द बशर को आप लोगों के मकसद की इत्तला ना हो, यहां तक कि आप लोगों के अहलो अयाल को भी। खुदा आपका मुहाफिज हो। और पहलवान कियान, खाने के काफिले के साथ खुद तुम भी जाओ और लश्कर साबात तक पहुंचकर खाना तकसीम करने में मुकम्मल नजारत रखना। कहीं खुदा न खास्ता किसी का हक ज़ाय न हो जाए। पुरमसरत खबरों से गाफिल मत होना कि ये फौजियों की रूह जिंदा कर देती हैं। कहां गुम हो कियान? अबू इसहाक बहुत गुमसुम है। काश आप इस तरद्दुद और शकूक के मैदान में मेरा और जारिया का मौजू ना निकालते। आज का अबू इसहाक कल से बहुत मुख्तलिफ है। जाओ कियान, अबू इसहाक की फिक्र मत करो। आज का अबू इसहाक कल के अबू इसहाक से यकीनन एक दिन बड़ा हो गया है और मज़ीद पुख्ता हो गया है। मैं चलता हूं। बानू ज्यादा को देखा मुख्तार? क्या बातें हुई चचा की जान? बताओ, मैं सुनने के लिए बेताब हूं। मुख्तार, तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि अपनी खेती बाड़ी और ज़राअत पर तकिया करो। तुम लोग शाम के उस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते जो टिड्डियों की तरह है। आप लोग अपने आप को बचाइए, मैं अपने शौहर को बचा लूंगी। चाचा जान, हम बाजी हार चुके हैं। क्या मतलब बाजी हार चुके हैं नूरे नजर? मतलब ये कि बानू ज्यादा भी उम्र साथ की तरह बातें कर रही हैं। मतलब ये कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि इमाम को सुलह पर मजबूर करें। यानी ये कि इमाम खुद अपने घर में भी तन्हा है और कोई साथी नहीं। काम हाथ से निकल चुका है चाचा जान। अब चाहते हैं उस लश्कर से लड़ने के लिए जाएं जो सहरा की रेत जितनी तादाद में है, और दौलत के हवाले से कई ढेर सोना उनके पास है, और शैतान के लश्कर के जैसी चालबाजियां। तुम पागल हो गए हो मुख्तार। हवा और हवस की जद में आ गए हो। बानू ज्यादा जादूगर थी या उम्र साथ? चचा की जान, वो लोग जो बद्र ओहद और खंदक में रसूल खुदा के सामने लश्कर आराई कर रहे थे, उनकी तादाद हिलत और दौलत शामियों से किसी तरह भी कम न थी। बदर वालों के मुकाबले में 3 पर 1 के हिसाब से थे। हाँ, 3 पर 1 के हिसाब से थे, मगर थे है नहीं। दुनिया से दिल उखाड़ चुके थे।
और मौत के मुश्ताक थे। हाशमियों के सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने वाली तादाद रह गई है, और आप शियायान इराक अजम और शूश और आवाज के साथ मिलकर हम फौज बना रहे हैं मुख्तार। चाचा जान, हम खामखा जोर लगा रहे हैं। वो लोग जो खुद को पिसारे पैगंबर का फिक्रमंद कहते हैं, वो हमसे ज्यादा मुहक्कम बुरहान रखते हैं। सुलह हुदैबिया, मुझे यकीन है कि मौला बिस्तर से उठेंगे और उन्हें सुलह के लिए आमादा कर दिया जाएगा। तो जब तक फुर्सत है पीछे आ जाइए और मुआविया से सुलह कर लीजिए। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बातें मैं उस बेटी से सुन रहा हूं जिसका बाप उसने शहादत करके मैदान में जाता था। मुझसे चाहते हो कि सारी जिंदगी की अली की मोहब्बत को छोड़ दूं और माविया को पकड़ लूं, वो भी उन दिनों में जब मेरे पांव कब्र में लटके हुए हैं। अफसोस, अफसोस, अफसोस। खुदा कसम, ये जो मेहंदी मेरे हाथों पर देख रहे हो, ये शहादत की मेहंदी है। अफसोस मुख्तार, तुमने इन बातों से मेरा जिगर जला दिया है। मुझे खुशफहमी थी कि मेरा शेर भतीजा एक खून की प्यासी तलवार के साथ और दिल हिला देने वाली आवाज और खुलूस ईमान से भरपूर दिल रखते हुए मुझे मेरे इमाम के सामने सुरखरू कर देगा, सुरखरू कर देगा। चाचा जान, खुदा की कसम आप कह दीजिए मर जाओ तो मैं कफन पहनकर कब्र में सो जाऊंगा, मगर मेरा दिल नहीं चाहता कि ये सफेद महल मेरे चाचा का मदफन बन जाए बगैर उसके कि उनकी लड़ाई का कोई फायदा हासिल न हुआ हो। यकीन कर लीजिए कि हमारी इस मुकालमत का कोई भी फायदा जंग तक नहीं जाएगा। सुलह यकीनी है। मुआविया भी मौला को नहीं मारेगा। वो चाहे अपनी हुकूमत की बका के लिए ही क्यों ना हो, हरगिज़ अपने नाम को बदनाम नहीं करेगा। कैसा अजीब कशफ किया है तुमने। जाओ मुख्तार, जाओ। इसके बाद मुझे तुम्हारी इस तलवार और तदबीरों की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने चाहा तो इस बारे गिरा को मैं अकेला अर्श तक ले जाऊंगा। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जिसने उम्मत का मसला हल कर दिया। मुसलमान जंग से आजाद हो गए। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने आपस में सुलह कर ली। मुआविया खलीफा हो गया और हसन ने बैत कर ली। ए मदाइन के लोगों सुनो, ए मदाइन के लोगों होशियार, जंग खत्म हुई। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने हंगामे के बाद आपस में सुलह कर ली। हसन ने घुटने टेक दिए और मुआविया खलीफा हो गया।
तुम कब तक दांत कसे रहो? खलीफा ने बख्श दिया, तुम नहीं बख्शोगे? खलीफा की बख्शिश ने हम सबको असीर कर दिया और तुम सबको दिलेर बना दिया। खतरा हम सबको था, पागल रंगने वाले। खुदा का शुक्र है मदाइन रोमी तोपों और जंगजू बिच्छुओं से तबाह नहीं किया गया। हसन ने सुलह करके खुदा को खुश किया है। नादान, इमाम हसन की मुआविया से सुलह अजमियों का कत्ल था, लंबे कानों वाले। आहिस्ता बोलो दीवाने, ये बातें अहमरा की हैं। ये बात अली के मुरीदों की है। मैं अबू नसीर हूं, गंजे, उस धागे का ताजिर जिसे तुम रंगते हो। हसन और मुआविया की सुलह तमाम मुसलमानों के मफाद में थी, सिवाय अहमरा के जो जाती तौर पर अरबों के दुश्मन हैं और अपनी दुम को अली के मुरीदों के साथ बांध चुके हैं ताकि उनके साथ मिलकर दोस्ताना अंदाज। ज़रबी, जी मेरे आका। आओ बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। आ जाओ ध्यान से। आ गए आजाद लड़ाका सिपाही। सब कुछ खत्म हो गया मुख्तार। मेरी तमाम आरजुएं हसरत में बदल गई हैं। तुम्हारी आंखें खून के दो प्यालों की तरह हो गई हैं। खुदा की कसम, मेरे लिए मौत ज्यादा बेहतर थी। काश मैं मर गया होता और इतनी जिल्लत का सामना ना होता। जो इमाम ने कबूल कर लिया ये सुलहनामा नहीं था, शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का। बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है। गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया। अपने एहसासात की लगाम में सरकश को खींचो, होश करो। आओ आओ कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था। शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार। हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे। तुम में मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा है, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुसवा नहीं होगा। अगर उन्हें जरा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज़ इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुसवा होता? वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता। क्या उसका हज कज़ा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क व फुजूर करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए काफी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को न्याम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है।
इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम और मुआविया इब्न अबू सुफियान के माबैन सुलह मंजूर हुई, जिस पर तारीख के औराक गवाह हैं कि 5 बुनियादी उसूलों पर मुश्तमिल थी, और उसकी अहम तरीन और सबसे पहली शर्त यह थी कि मुआविया के बाद उसकी हुकूमत को कोई वारिस नहीं होगा। मुआविया ने उस मोतबर सनद के तहत वादा किया कि उसके बाद अपनी हुकूमत के लिए कोई जानशीन मुअय्यन नहीं करेगा। क्या तुम्हारी कश्तियां डूब गई हैं मेरी जान? मुख्तार से फिक्रमंद हूँ खाला। क्यों? मुख्तार तो बिल्कुल सरे तस्लीम खम कर चुका है। अभी तक उमर से हाथ नहीं मिलाया उसने। अगर हाथ ना मिलाया होता तो इस शादी के लिए रजामंद ना होता। वो मजबूर हुआ है खाला जान। मेरी और नारिया की चालाकियां उसकी रजामंदी का सबब बनी। दर हकीकत वो उमर से नाराज है। वो चाहता है कि उसके तन पर सर ना हो। निकाह का खुतबा हो जाने दो। उमर और मुख्तार एक हो जाएंगे, कीने दिलों से खत्म हो जाएंगे। मुंह लटकाने के बजाय आंखों में खुमार पैदा करो ताकि उमर का दिल लुभा सको। मैं डरती हूँ कि मुख्तार का गुरूर जख्मी ना हो जाए खाला। अगर मुख्तार के गुरूर को खराश भी आई तो हमें छोड़ेगा नहीं। मुख्तार उस वक्त खतरनाक है जब उसके हाथ में तलवार हो। वो मुख्तार जिसके हाथ में बेलचा है वो चूंटी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। काश खुदा आपकी सुन ले खाला। मुआविया इब्न अबी सुफियान मुसलमानों की हुकूमत के खलीफा की हैसियत से हुकूमती मसनद पर जानशीन था और इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ किए हुए अहदनामे की किसी एक शर्त पर अमल नहीं करता था। हुकूमत का विरासती न होना और इमाम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की जान का तहफ्फुज उस अहदनामे की 2 बुनियादी शर्तें थीं। जिस बादशाहत का उसूल खानदान अबी सुफियान का ख्वाब था, उसे पाने के लिए मुआविया ने अपने बेटे यजीद की हुकूमत की राहें हमवार कर दी और अपने इस हदफ तक पहुंचने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी रुकावट समझता था और इसी खातिर एक मुनासिब मौके के इंतजार में था कि कब उन्हें अपने रास्ते से हटा सके। तारीख की गवाही के मुताबिक आखिरकार एक पेचीदा साजिश के तहत जोजा इमाम के हाथों उन्हें जहर दिलवाने में कामयाब हो गया और कूफा के अतराफ के देहात में से एक लफ्ता नामी गांव में खेती बाड़ी करते रहे। मुख्तार सक़फ़ी अपनी अक्ल और दिल के दरमियान एक शदीद जंग के माबैन तलवार को गिलाफ में रखे रहे। लफ्का सन 60 हिजरी।
मुख्तार, मुख्तार, जागो मुख्तार। ये हो लाखाब कब तुम्हारी जान छोड़ेंगे मुख्तार? मेरा जिगर जल रहा है उमरा, एक घूंट पानी दे दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना, मैंने कहीं से ये नहीं सुना कि घोड़े के हाथ पांव बांधने से वो चलने का ढंग सीख जाता है। तुम घुड़सवार नहीं हो ज़रबी, तुमने सरदारी नहीं की है। ज़रबी आपके सदके मेरे आका, बताओ ताकि तुम्हारा नौकर भी सीख जाए। अगर उसके हाथ पांव बांध दो और फिर इसे चलाओ तो उसे आदत हो जाएगी कि शुतुरमुर्ग की तरह न चले और अपने सवार का दिल न तोड़े। इसकी माँ चीख चीख कर मर जाएगी। हो गया। बहुत खूब सीखा हो ज़रबी। जी हाँ, सीधा हाथ उल्टे हाथ पे और सीधा पाँव उल्टे पाँव पे बांधना है। तस्मा भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक कायदे पे होना चाहिए। देखो क्या खूब दिल लुभा रहा है, कद भी खूब ऊंचा है। कहाँ कहाँ उड़ने का कितना शौक है इसे। ज़रबी, आज से इसे दुलदुल पुकारना। दुलदुल? अरब के शाहसवार का घोड़ा अली का। क्या गिरा कदर नाम है दुलदुल। ये लो, हर रोज इसके साथ मशक करना। शाबाश शाबाश बेटे, अबू इसाक को ताजा दम कर दिया तुमने। उसे मत डराओ, मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा वहशी रहे। अगर आपको छोड़ दिया जाए तो ग़ुरूब आफ़ताब तक इस घोड़े के साथ लगे रहेंगे। घोड़ा नहीं है उमरा, अजदहा है। देखो तो इसे। मैं आज तक सोचती थी कि फकत तुम्हारी तलवार से मुझे हसद करना चाहिए मुख्तार, मगर आज मैं समझ गई कि नहीं, उमरा के और भी रकीब हैं। तुम्हारे मद्दे मुकाबिल तो उम्मे साबित है। मुख्तार अपनी तलवार और घोड़े के बगैर मुख्तार नहीं, परिंदे उड़ाने वाला पुतला है। जाओ जरा मुंह हाथ धो लो, अपने कपड़े वगैरह तब्दील कर लो। भूल गए आज रात हमारे पास मेहमान आ रहे हैं। ज़रबी, दुलदुल का सर पकड़ो। ताकि गूंगे और अंधे हो जाएं अली को बुरा कहने वाले। इधर आओ जवान, इस नजरे बद से हिफाजत की दुआ को तुम बाजू पे बांधो। कूफियों की नजरें कुत्तों की सी हैं। जानता हूं कि इस गंदे नफ्स और कुत्ते की आंखों वाले के खौफ से मेरे और दुलदुल के लिए फिक्रमंद हो। उमर साद ऐन नजासत और नहुसत है। खुदा की कसम, जब से मैंने बानो से सुना है कि उम्र साद आज यहाँ मेहमान बनकर आ रहा है, तो कम से कम 10 दफा अर रहीम का विर्द किया।
खुदा ही उसके शर से बचा सकता है। काश किसी तरह उन लोगों को टाल देती तुम। खुदा जानता है कि उस बेगैरत के खून का कितना प्यासा हूं मैं। चाचा जान मदद कीजिए, मेरा जिगर जल रहा है। चाचा जान जाओ और खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी जबान से गिरा उठा ली गई। अली के नाम ने तुम्हें बचा लिया। मत जाइए चाचा जान, एक घूंट पानी दे दे मुझे। ये पानी किसी और का है मुख्तार, मेरा नहीं है। किसका है? अली के बेटे हसन मुश्तबा का। उन्हें जहर दे दिया गया। ये पानी उनके टुकड़ों में बटे हुए जिगर की दवा है। चाचा जान, मेरा जिगर जल रहा है। इस पानी में से एक घूंट मुझे भी दे दीजिए, यकीनन इमाम हसन राजी होंगे। उन्हीं को मदद के लिए पुकारो। अगर तुमसे राजी हुए तो जरूर जवाब देंगे। मैं शर्मिंदा हूं मौला हसन से। तुम किससे बात कर रहे थे मुख्तार? पानी में अपनी शबीह से। मेरे ख्वाबों की ताबीर मुझे बता रही थी। मेरे सीने में एक आग है उमरा, अगर उसे भड़कने का मौका मिल गया तो दुनिया को जला देगी। काश आज रात की दावत कबूल न की होती। मैं जारिया की शुकूक से डर गई मुख्तार। उसका दिल टूटने का खौफ था। तुम्हें नहीं पता कैसे गुजारिश कर रही थी। ये मेहमान बनकर आना एक साजिश है। खुदा जानता है कि पिछले साहब ने इस बार मेरे लिए कौन सा ख्वाब देख रखा है। अगर दोस्ती का इरादा होता तो नादिया उमरा से ज्यादा इसकी मुस्तहिक थी। दिल में मैल मत लाओ मुख्तार। कौन सा अच्छा ख्वाब, कौन सी साजिश? मेरी और तुम्हारी शादी के बहाने तुम्हारी बहन और बहनोई मिलने और खुशियां बांटने के लिए आ रहे हैं। काश मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर सकता। जारिया ने इसी वजह से उमरा का इंतखाब किया है, क्योंकि वो जानती है कि मुख्तार उमरा के आगे गुलाम की मानद है, मुती व फरमा बरदार।
मुख्तार की गर्दन तो कूफा के हाकिम की बेटी के सामने झुकनी ही चाहिए। यानी उम्रा की बात कीमती है क्योंकि उसका बाप हाकिम कूफा है। नहीं बानू, हाकिम कूफा तो सिर्फ बहाना है। सोहबत इश्क कर डालती है। इतना अपनी मूंछों से मत खेलो उमर। ऐसा काम करना चाहते हो कि मुख्तार तुम्हारे मुखालिफ हो जाए? आदत को छोड़ देना बीमारी का सबब बनता है। तुम बरहक हो। मुझे बज़ाहिर अफसरदा और गमगीन नजर आना चाहिए। मूंछों को ताव देना यानी मद्दे मुकाबिल को जंग के लिए पुकारना। और सुनो, हुस्न और गमो अंधों को मत भूलना। ये ठीक है। ये शक्ल कैसी रहेगी? याद रहे कि इस दीदार का मकसद खुदा की खुशनुदी थी और छुपे हुए दुश्मन का खौफ जो सांप की मिसल है। अहलन व सहलन है इब्न साहब। मुख्तार, मुख्तार मेरे भाई। शामदी जारिया, तुम्हारे कदम मुबारक। खुश रहो उमरा मेरी जान। मैं तुम्हारी मशकूर हूँ कि मेरी लाज रख ली तुमने। खुदा तुम्हें खुश रखे। मैं अपना बहनों वाला कर्ज चुकाने आई हूँ। मुझे माफ कर दो भाई। तुम्हारे महासन में सफेद बाल देख रही हूँ, मैं मर जाऊं। बहुत शुक्रिया कि हमें याद किया। बानो, उमरा कैसी है? आपका लुत्फ है शेख। ठीक हूँ। लफ्का की जन्नत में क्या कर रही हैं आप? मैं तो अपने चूसों और परिंदों के साथ मसरूफ रहती हूँ। हाँ, मशगला तो अच्छा है। क्या आपने सुना कि अम्मा हव्वा जन्नत से बेजार होकर बाबा आदम को दुनिया की दोज़ख की तरफ ले गई? क्या आप हमारे मुख्तार को कूफे की दोज़ख की तरफ फरेब देकर नहीं ले जाना चाहेगी? इस दफा कहानी उल्टी है शेख। इस बार बाबा आदम अम्मा हव्वा को कूफा की दोज़ख से लफ्का की जन्नत में लेकर आ गए हैं। हक ये है कि नौमान इब्न बशीर जैसे अमीर के हाथों की पली हुई हो। शाबाश है इस हाजिर जवाबी पर। मुख्तार ने ठीक ही किया कि कूफे के जहन्नुम से निकल गया। लफ्का की जन्नत आप दोनों को रास आए और आप हमेशा खुश रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. वला ज़ालिन और मेरे बाप का सर, वला ज़ालिन और जहन्नुम। कहाँ हो लड़की?
यहीं पर हूँ। कहाँ खो गई जारिया? जल रही हूँ तुम पर, तुम्हारे वक्त और सलीके पर। तुम कूफे की खुशनसीब तरीन औरतों में से हो। मैं बहुत बुरी नजर वाली हूँ, अपने लिए इस फन का दाना जलाओ। हसद करने वाला चैन नहीं पाता। तुम मेरी किस चीज पर हसद कर रही हो जारिया? तुम्हारी हर चीज पर, तुम्हारे शौहर पर, तुम्हारे बाप पर, तुम्हारे घर बार पर। तुम्हारे पास हर चीज बेहतरीन है उमरा। और मेरी रकीब? उम्मे साबित जैसी रकीब को बयाबान के भेड़िए न देखें। तुम्हारा दामन थामती हूँ उमरा। उम्मे साबित को पता न चले कि हम दोनों आप लोगों के पास आए थे। अगर सुन ले तो मेरे दिन को सियारात बना देगी। जब तुम डरती थी तो फिर क्यों आई? तुम उम्मे साबित की रकीब हो, मेरे लिए तो नहीं हो। बहरहाल तुम उम्मे साबित के हाथों की पली हुई हो। उसने तुम्हें पाला है, तुम्हारी शादी की है, तो फिर तुम्हारी माँ का मुकाम रखती है ना? मैंने भी हमेशा उसे माँ जैसी मोहब्बत दी है, मगर जिस दिन मेरा निकाह उम्र से हुआ है, हमारी मोहब्बतों का पैमाना गोया टुकड़े टुकड़े हो गए और आज तक दोबारा जुड़ा नहीं। क्यों? मुझे क्या पता। उसे लगता है कि मेरी और उमर की शादी उसकी तरफ से मुख्तार की कम तवज्जो का बाइस बनी है। फिर जब भी उसे मिलने गई हूँ उसने मुझे ताने ही दिए हैं। और जिस दिन से तुम्हारा और मुख्तार का निकाह हुआ है, उस दिन से भी सारे आलम की लानतें मुझ पर निसार कर रही है। सच तो यह है कि मैं डर रही हूँ कि कहीं काली नियत वाली न बन जाए और इन सब आहों और लानतों की बदौलत मेरा खाना खराब कर दे। अगर उसकी लानत मलामत कारी ज़र्ब लगाने वाली होती तो मुझे अब तक 7 कफन पहना चुकी होती। बता, मुख्तार भी ठीक नहीं कर रहा है। मैं साबित उसकी बीवी है, उसे ज्यादा से ज्यादा कुफा जाना चाहिए। मैंने तो बहुत समझाया मगर वो ना माना। वो आज भी लफका को कूफा पर तरजीह देता है। मुख्तार हमेशा कूफा से बेजार रहा है उमरा। कूफा उसके लिए बुरी दास्तानों से भरा हुआ है। लफका को आखिर तरजीह क्यों ना दे? लफका का मतलब है मुख्तार का इश्क, यानी उमरा। खुदाया, इस रोटी और खाने का सवाब मेजबान के मुर्दगान को पहुंचा और रोजा रिजवान के ताम और शराब इस मेजबान के नसीब में लिख दे। आपकी सखावत पायदार, आपकी खैर आफियत बरकरार, आपके गुज़िश्तगान का सुफ्रा रंगीन हो, आपका दहन शीरी हो, बानो उमरा के हाथ कभी ना दुखे। इंशाअल्लाह हम जिंदा हों और आपके हक का वलीमा भी खा सके। नौशी जान आपको। खुदाया तेरी नेमतों का शुक्रिया, जो दिया ना दिया उसका भी शुक्रिया। खुदाया तौबा तू बड़ा है और हम हकीर हैं। इस गुरोह के गुनाहों से दरगुजर कर, चाहे वो छोटे हो या बड़े, कम हो या ज्यादा। दुआ और अलफू करने के अलावा और क्या करते हो उमर? मुस्लिमीन और मुस्लिमात और मोमिनीन मोमिनात, एक मस्जिद बनाई है मैंने। इस पर मेरा नाम नहीं लिखा गया कि कहीं रियाकारी ना हो जाए। बदतरीन गुनाह यह है कि तुम जुल्म और जूर करने वाले के कारिंदे रहो। जब तक एक सितमगर हाकिम का खिदमत गुजार हो, रहमत इलाही के बेकरार समंदर से महरूम रहोगे। हाकिम सितमगर से कहीं आपकी मुराद खालिल मोमिनीन मुआविया तो नहीं है? बेहतर है कि आज की रात आप लोग सियासी गुफ्तगू ना करें। अरे नहीं जारिया, आखिर क्यों बेजा तवक्को कर रही हो? जंगजू मर्दों की आदत होती है, जहां उनकी तलवार म्यान में होती है वहां वो अपनी जबान की तेजी से खुरेजी करते हैं। एहसनत बानो, मरहबा। अब मैं समझा कि मेरे भाई की सरकश रूह किस मसीहा के एजाज से लफका में फंसी हुई है। आप तो अपना काम कर गई बानो। हाय हाय हाय, मुख्तार और जैसे लोग औरत जिंदगी बाग और ज़रात के हाथों बनने के लिए पैदा नहीं हुए।
कभी कभी इलाही हिकमतों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। बेशक इस शेर को काबू में रखने के लिए हुनर चाहिए, हुनर चाहिए। मैं भी बाज़ औक़ात तकदीर के कारोबार पर खूब हंसता हूँ। अगर मुझे इलाही हिकमतों पर यकीन न होता तो दरगाह इलाही में जरूर शिकवा करता। हंसो उमर, हंसो। तुम्हारी हंसी भी दुनिया जहां के तानों की फहरिस्त में है। अगर खुदा ने चाहा तो इन्हीं दिनों मेरे हाथों पैरों की डोर खोल दी जाएगी। क्या कुछ हुआ है मुख्तार? हाँ, कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। अगर मैं गलती ना करूं तो जो शराब तुमने डाली है उसने असर कर दिया है। मैं तुम्हारे क़ल्बी एहसासात को उसी बचपने के दौर से जानता हूं जब हम लकड़ी की तलवारों से बादशाहत की मशक़ें करते थे। मुआविया की कुर्सी पर नियत नहीं लगा सकते क्योंकि मुआविया ने उसे बहुत पहले से यजीद के लिए तैयार कर दिया है, और रह जाएगी लश्कर की सिपाह सालारी, या फिर मुमकिन है कि ईरान जैसे हसीन मुल्क के इलाके की हुकूमत मिल जाए। सही अंदाजा लगाया है ना मैंने? बानो उमरा, आपकी समझ में आ रहा है उमर किस चीज के बारे में बात कर रहा है? शेख की बातें उनके अपने ख्वाबों की तरह हैं मुख्तार। मुल्क रे पर हुकूमत करना शेख का ख्वाब ख्याल हो चुकी है। जारिया, तुमने मेरे छुपे हुए राज को फाश किया है। कौन सा छुपा हुआ राज? सारा जहां जानता है कि तुम हुकूमत रे की चाहत में दीवाने हुए जा रहे हो। आप क्यों बिगड़ रही हैं नाज़नी? उसी की हुकूमत तो आप ही का दिखाया हुआ ख्वाब है। हमारा ख्वाब आपकी सादत है। जी हाँ। जारिया, आप सहमत मत कीजिए। कोई सहमत की बात नहीं है बहन। खाना आपके मतलब का था? खुदा इजाफा करे, वाकई बहुत लजीज खाना था। बड़े अरसे से मैंने ऐसा लजीज कबाब नहीं खाया। आपके नौशे जान। जानते हो आज रात का खाया हुआ कबाब क्यों लजीज था? भाई, मुफ्त का खाना तो लजीज ही होता है ना। तुम्हें तो मुफ्त लुक़्मे खाने की आदत है इब्लीस। जो खाना तुमने खाया है वो इसलिए लजीज था क्योंकि तैयब व ताहिर था, गंदगी से पाक। मजाक कर रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ का दूध भी आज रात के इस कबाब जितना पाक होगा। फिर तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस लुक़्मे की बरकत से फिशारे कब्र से बच जाऊंगा। उस पकी हुई शराब और ईरान के हसीन मुल्क की हुकूमत का क्या किस्सा था? यानी क्या वाकई कुछ नहीं जानते आप? मैं क्या चीज नहीं जानता खबीस? बस भी करो मुख्तार, बेवकूफों की अदाएं खूब बजा लाते हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम आबिदों और जाहिदों की नकल खूब उतार लेते हो। तुम आज रात किस मतलब और नियत से अपने आप को यहाँ लाए हो? अब कौन सा गिरा हुआ मशवरा है फरेबी इंसान? तुमने शादी की है, नई जगह आए हो तो हम मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। कुछ गलत किया हमने? अपने दिल की बात करो खन्नास। मुख्तार, इस रिश्ते से तुम अपनी तमन्ना तक पहुंच जाओगे। शक मत करना, नुमान इब्ने बशीर तुम्हारा नया ससुर तुम्हारे पुराने ससुर समरा इब्ने जंदब से फर्श से अर्श के जितने फर्क रखता है। इस दफा तुम्हारी कमन का हल्का एक चाको चौबंद शिकार की तरफ गिरा है। नौमान खलीफा के बहुत करीब है। जिस विलायत का हाकिम बनना चाहोगे वो अपनी बेटी के जहेज के तौर पर दे सकता है। तो जब तक तंदूर गर्म है अपनी रोटी चिपका दो। क्या हुआ है? आका जान, कियान आया है। कियान?
रात के इस वक्त? ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। मैंने उन्हें बुलाया था आका, मगर वो अंदर आने से शर्मा रहे हैं। खुश आमदीद गैरत के पहाड़। तुम्हारी तारीफ में क्या कहूं, जले हुए दिल की मुराद। खुश आमदीद बानो। खुश रहिए भाई। उमर जब भी अपनी मूंछों से खेलता है, इसका मतलब यह है कि बहुत खैरतमंद हो गया है। अब तक कयान को एक रकीब की निगाह से देखता है। ये हसलत बहुत जालिमाना है। गुस्सा मत हो बंदा खुदा, तुम उस सरदार के बेटे हो जिसने ईरान को फतह किया। तुमसे ये बैद है कि एक ईरानी का नाम सुनकर इतना परेशान हो जाओ। मुझे यकीन है कि ये गधा बिला वजह नहीं आया होगा। मुझे यकीन है कि जारिया का हाथ मांगने नहीं आया। क्यान अब तक मुख्तार से मिलता है बानो? मिलता नहीं है शेख। क्यान और मुख्तार बहुत गहरे दोस्त हैं। इन दोनों की दोस्ती मेरे लिए पहेली बन गई है। इन दोनों की दोस्ती दो बाप के कातलों की दोस्ती है। मुख्तार का बाप जंग में ईरानियों के साथ मारा गया। बाप के कातिल से कब दोस्ती हो सकती है? सी बुना पर मुख्तार एक अजीब आदमी है। मैं कोई हसद करने वाली बीवी नहीं हूँ, मगर बाज औकात मुझे मुख्तार के साथियों से हसद होने लगती है। मुआविया मर गया। नहीं, यकीन करो मुख्तार, खबर बिल्कुल सच्ची और ताजा है। अब यजीद खलीफा है। ताज्जुब है। अंधी आंखों से भी लोगों की इबरत का मुशाहिदा किया जा सकता है। ये दुश्मनी चंद हजार सूती कपड़े के कफन के लिए है। कसम बखुदा दीवानगी है। अंदर आओ कियान। नहीं अबू इसहाक, मैं शीरी बानो के साथ आया हूं। मुझे मालूम नहीं था कि आपके मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दो, मैं वापस जाना चाहूंगा। ये सब मुझे सहना पड़ेगा? मेरा इम्तिहान ले रहे हो? कियान की मंजिल का इम्तिहान लेने की जरूरत नहीं है। बस शीरी जाकर बानो उम्र से कुछ हाल अहवाल पूछ लेगी। मैं यहाँ जरबी के साथ खुश हूँ। जी हाँ, मैं और पहलवान कियान एक साथ, आप और आपके हीलागर बेनोई एक साथ। आइए शीरी बानो। अगर मेरी बहन की जबान से कोई जख्म लग जाए तो आप उसे माफ कर दीजिएगा। आप फिक्रमंद मत होइए अबू इसहाक, मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लूंगी, ठीक है? आइए बानो। बिन बुलाए मेहमान बुरे तो नहीं लग रहे ना उमरा? तुम मेहमान नहीं हो शीरी, हमारी अपनी हो। जरबी से सुना कि आपके घर मेहमान है। खुदारा हमें माफ करना, हम लोग बेमौका आ ये गए। क्या बातें कर रही हो बहन? खुश आमदीद। कोई मसला तो नहीं है ना शीरी? मसाइल ने मुझे थका दिया है। मेरी मदद करो उमरा। मैं जबरदस्ती मुस्कुराकर थक गई हूँ। मैं बेवजह इताअत कर करके थक चुकी हूँ। क्या जन्नात में से हो लड़की? शायद शैतान मेरे दिल में घुस बैठा है। आज ही कौन सी खबर है कि आधी रात को कियान यहाँ बेमौका दावत देकर ले आया? कहीं जारिया की बू सुनकर तो नहीं आ गया? अस्तगफार करो लड़की, जारिया शादीशुदा है, बच्चे वाली है। कियान से ये बैद है कि वो खुद को गुनाह से आलूदा करे। तुमने मेरे बहुत पुराने रकीब को मेहमान के तौर पर बुलाया है ताकि मेरी रूह का अजाब बन जाए और मेरा खाना और नींद हराम हो जाए। ठीक है, खाल को चमड़ा रंगने वाले कारखाने लाया जाता है।
तुम्हें अगर ख्याल होता तो अपने मेहमान के साथ ऐसी अहानत नहीं करते। क्या ये मुमकिन है कि तुम लिफाफे में बात न करो? इस तरह बात करो कि हम भी समझ सकें। मुख्तार, शेख का दावा है कि तुमने जानबूझकर कियान को बुलाया है ताकि उन्हें हकीर करो। अगर ये दावा ठीक निकला तो बखुदा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। काफिर हर किसी को अपने जैसा समझता है। तुमने कैसे शक किया उमरा? शक करना ऐब नहीं है, आदमी शक कर करके ही बड़ा होता है। कियान ऐसी खबर लाया है कि जिसके सुनने का मैं सालों से मुश्ताक था। ऐसी खबर कि मुझे नहीं लगता कि शेख उसे बर्दाश्त कर पाएंगे। खालुल मोमिनीन मुआविया अपनी उम्र इन्हें देकर चले गए। क्या ये दलील कियान के आने के लिए काफी है? वो मुसीबत आ। अब सुकून मिल गया तुम्हें? वो खबर जो आधी रात को कियान को लफका ले आई, वो खलीफा की मौत की खबर थी। मैं वादा करती हूँ कि जारिया की जबान के जख्मों के सामने अपने हाथ पांव संभाल कर रखूंगी। क्या खबर सच्ची है मुख्तार? हाँ उमरा, सही है। बिलाखिर मौत का भेड़िया उम्मत के बेरकीब खलीफा को शिकार कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काश मुआविया उस सुलहनामे का लिहाज रखता जो इमाम हसन के साथ तय पाया था और खिलाफत को सल्तनत की तरह विरासत की नजर न करता। ये बात खलीफा के अमाल को तोलने में एक नाइंसाफी है। उसके पहाड़ के बराबर खुदा पसंद अमाल के सामने कोई बड़ी बात नहीं। मरहूम मुआविया ने इस खस्ता हाल और पुरतशवीश मुल्क की कोई कम खिदमत नहीं। इराक़ अरब पर जो अमन छाया हुआ है वो उसकी फहम फरासत के मरहून मिन्नत है। मैंने खुद एक बादिया रशीद बुढ़िया को देखा था जो कि रहसनों के खौफ के बगैर हज पे जा रही थी। अगर मुसलमानों में कुछ गैरत हो तो इस अजीम सोग पर खून के आंसू बहाए। चलो चलो उठो जारिया, उठो चले और रज़ा के कपड़े पहने। कहा शेख, आधी रात का वक्त है। आधी रात को जाना बेहतर है बनिस्बत सुबह तक जिगर जलाने के। मैं सोग में हूं और मुख्तार खुशी में। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही छत के नीचे सुबह तक रात काटें? तो तुम मेरी रकीब हो? आपकी रकीब तो अरबी महलात की मलकाएं हैं बानू। मैं तो एक ईरानी सादा लो इंसान की बेटी हूँ। उस जमीन की तरह हो जिसने कभी धूप न देखी हो। जानती हो खून किस रंग का होता है? मैं आपका मतलब नहीं समझ पा रही। वो तो नजर आ रहा है कि तुम समझ नहीं रही क्योंकि तुम्हारे चेहरे में तो खून ही नहीं है। सफेद कपड़े पहन लो तो बिल्कुल उस रूह की तरह दिखोगे जो कब्र से उठी हो। रूह होना शेर आशूब की बीवी से बेहतर है। बहुत बेरहम हो तुम मुख्तार। कि तहजीब और जवामर्दी की रस्म से बाइद है। वो लोग मेहमान थे और उनका एहतराम वाजिब था। तुमने अपने इस बुरे बर्ताव से मुझे शर्मिंदा कर दिया। कौन सा बुरा बर्ताव उमरा? यही कि अपनी जबान से उन्हें जख्मी कर दिया और अपने किनायाबाजियों से उनकी तहकीर की तुमने। ये आपका एक और निराला कारनामा। वाकईतन शर्मिंदगी की बात है। उमर साद आज रात मेहमानी पर नहीं दल्लाली के लिए आया था। वो मेरे और तुम्हारे बाप के दरमियान एक मामले का दल्लाल बनकर आया था। वो चाहता था कि मुझे इस बात पर आमादा करे कि मैं अपने ससुर हाकिम कूफा से, जो कि मुआविया के खास मुकर्रबीन में से हैं, उनसे उनकी बेटी के जहेज के तौर पर किसी भी इलाके की हुकूमत का मुतालबा करूं। क्या ये कोई कम अहानत है? बोलो, ऐसे इब्लीस से कैसा बर्ताव करूं? बताओ। उसे जवाब दूं इस बात का? उसके पैर छूकर उसके सामने उठक बैठक करूं? क्या वाकई ऐसा मशवरा देने आया था? हाँ, और इंतहाई बेशर्मी के साथ आया था ताकि इस मामले पर बात करे। फिर यकीनन हुकूमत रे को भी दलाली का हक समझकर मांग रहा होगा। मेरा तल्ख चेहरा देखकर उसने दलाली के हक में बात नहीं की। मैं कितनी सादा लौथी के जारिया की बातों पर भरोसा करके बैठी थी,
یعنی مبارکباد اور خوشیاں بانٹنا اور دوستی وغیرہ سب بہانہ تھا. بخدا قسم عمرہ، اگر تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو اس ملعون کو 15 سال کی نیندوں کے حرام کرنے اور وحشی خوابوں کے بدلے جو اس کا تحفہ ہے میں اس کی گردن اڑا دیتا. اس نے ایک بار دیمک کی طرح میرا ایمان کمزور کر دیا اور علی کے بیٹے کی حمایت کرنے میں مجھے سست کر دیا. 15 سال تک میرے ضمیر کے تانے میرا جینا حرام کرتے رہے. خدا نے چاہا تو میں گزرے ہوئے کا ازالہ کروں گا. بندر سے کھیلنے والا شرابی یزید ایک بہت اچھا بہانہ ہے دوبارہ علوی حکومت برپا کرنے کے لیے. کوفہ کل سے میدان جنگ ہے. کسی بھی طرح تمہارے والد کو کنارہ کشی کرنے کے لیے راضی کرنا ہوگا ہمیں. اگر راضی نہیں ہوئے تو ان پر تلوار کھینچ لو گے؟ تو پھر کیا کروں عمرہ؟ وہ لباس جو ایک لاہوبالی اور فاسق نوجوان کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے وہ میراث پیغمبر ہے. یا تو مجھے اپنے آپ کو گوشہ نشین بنا کر اپنے ان بھیانک خواب و خیال کی آگ میں جلتے رہنا ہوگا یا پھر تلوار اٹھا کر یزید عیاش پر حملہ کرنا ہوگا. یزید کے ساتھ ہونا ننگوار ہے، تمہارے باپ کے شایع نشان نہیں. ہمیں کچھ بھی کر کے انہیں اس شرک و کفر کی بساط کی خدمت کرنے سے روکنا ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اس میدان کا اصل قربانی کا بکرا میں ہوں، یا میرا باپ یا میرا شوہر. خدایا تو ہی میری مدد فرما. کوفہ ہزاروں رنگوں کے 1000 قبیلوں کا شہر. یہ کیا وقت ہے گانے اور ناچنے کا؟ شادی میں کوئی چنے اور حلوے تو خیرات نہیں کیے جاتے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. خلیفہ مر گیا سو مرنے دو. اب کیا لوگ ہر کسی کے مرنے پر عزادار ہو جائیں؟ ناچ گانا خلیفہ کی موت کی توہین ہے. یہ شادی خلیفہ کی موت کی توہین ہے. مردہ ہے یقیناً خلیفے کے ساتھ محفل ہوگا. بے غیرت، بے شرم، میرے باپ کے مرنے پر ہنستے ہو. وہ لوگ جن پر اگر مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ مجلس عزا اور سوگ ہے اس شخص کے انتقال پرملال پر جو کہ کاتب وحی ہے، خال المومنین، خادم المسلمین، ناصر الدین، فخر الملوک، فاتح ممالک روم اور قسطنطنیہ اور نیل، فرعونوں کے مقبروں کو ویران کرنے والے مرحوم مغفور جس کا مقام خلد بری ہے، جناب معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال افسوسناک پر جس نے بالآخر موت کا جام نوش فرمایا اور باقی جہان کی طرف چل بسا. افسوس
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ وہ اولی الامر جس کی اطاعت پر خدا ان کریم ہمیں حکم کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کل تک ہماری زبان قاصر تھی اور ہماری دلیل کمزور تھی، کیونکہ معاویہ بظاہر دیندار نظر آتا تھا اور اپنے آپ کو احکام دین پر چلنے والا سمجھتا تھا، سنت رسول پر عمل کرنے اور شیخین کے طریقے پر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنی سیاست اور چالاکی اور زبردستی سے شیعوں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ احمق شیعوں کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا، اور آخر کار وہ وقت آ گیا کہ علماء شیعہ کو خانہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ معاویہ جو کوئی بھی تھا اور اس نے جو کچھ بھی کیا اس کی قضاوت اور فیصلہ خدا کے ساتھ، مگر آج تو ہماری زبانیں کھلی ہیں۔ ہمارا اولی الامر یزید ہے، وہ یزید جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ حرام پیے اور جوا کھیلے، وہ یزید جسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کی نماز اور روزہ قضا ہو جائے، وہ یزید جس کا مونس و غمخوار ایک بندر ہے جس کا نام ہے ابو القیس۔ اب جب کہ آپ لوگ حاضر ہیں، یہ بتاتا چلوں کہ خلیفہ مغفور و مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی دین کی حفاظت اور فتح کیے گئے ممالک میں امن و امان برقرار کرنے کے لیے اور طرح طرح کے تنازع اور دینی و فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے اور تمام ممالک میں صلح و سکون کی برقراری کے لیے ایک نازک خیال اور نازک طبع اور رقیق القلب تحفہ ہم سب کے لیے تیار کر کے اپنی طرف سے یادگار کے طور پر چھوڑ گئے ہیں، تاکہ وہ ان کے بعد آپ کے خلیفہ ہوں اور باعث اطمینان قلب ہوں۔ تو میں نعمان ابن بشیر انصاری حاکم کوفہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے خلیفۃ المسلمین حضرت یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہیں۔ یزید امین امت، یزید فخر طریقت، یزید رهرو سنت، یزید عاشق احمد۔ فرض کر لیں کہ جو کچھ بھی یزید کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، بدخواہوں کی تہمت ہے، بکواس ہے، تو پھر امام حسن اور معاویہ کی صلح کو کھلم کھلا توڑنے کا ہم کیا کریں؟ کیا یہ طے نہیں پایا تھا کہ معاہدہ صلح کے مطابق خلافت موروثی نہ ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ شیخین کی سنت پر مسلمانوں کی شورا چنے گی؟ یہ بیکار نوجوان جس نے صبر نہیں کیا کہ معاویہ کا کفن خشک ہو جائے، اس کے بعد پنجے دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے حاکم مدینہ کو لکھا ہے یا حسین ابن علی سے بیعت لے لو یا اس کی گردن کاٹ کر بھیج دو۔ ذرا دیکھیے لادینیت کہاں تک، ابھی قدم نہیں جمائے ہیں اور اہل بیت نبوت کو قتل کرنے کے لیے کمر باندھ لی ہے۔ اس نے اعلانیہ طور پر نواسہ رسول کے قتل کا حکم دے دیا ہے۔ معاویہ نے جب مولا حسن کو زہر دیا تو کھلم کھلا قتل کو اپنے سر پر نہیں لیا، جادہ کی گردن پر الزام ڈال دیا اور ایک قصہ کر دیا کہ عورت ایسی تھی ویسی تھی۔ بہرحال آپ لوگ کوفہ کے نامی گرامی بزرگوں میں سے ہیں، یہ جان لیجئے کہ حسین ابن علی نے یزید سے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور راتوں رات مدینے سے نکل کر مکہ چلے گئے ہیں اور خانہ کعبہ میں اعتکاف میں ہیں۔
میں یہ نہیں چاہتا کہ داغ کو تازہ کر دوں، چھڑکوں، مگر کیا کروں کہ ہماری علی اور اولاد علی کے ساتھ بے وفائی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ علی کا زخمی سر اور حسن کا ٹکڑوں میں بٹا ہوا جگر ہمارے قصور کا گواہ ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ گزشتہ غلطیوں کا ازالہ کروں۔ میں سلیمان ابن سرد خزائی یہ چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر کوفے کی طرف بلاؤں اور ان کی بیعت کروں۔ اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں اور میرے ہم عقیدہ ہیں تو اس خط کے نیچے اپنی اپنی مہر لگا دیں۔ مختار جی شیخ، خط پر مہر نہیں لگاؤ گے؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس لیے بلایا گیا ہوں۔ میں اپنی مہر اپنے ساتھ نہیں لایا۔ جب سب مہر لگا لیں تو خط کو میرے گھر بھجوا دیجیے گا، اطاعت کی جائے گی۔ تم اس فعل سے موافق ہو؟ میں ایک فوجی ہوں شیخ، میں نے اپنی تلوار کو علی کے بیٹے کی حمایت کے لیے شکل کیا ہے۔ سلام، خدا قبول کرے اے امیر۔ ابن حریث، جی امیر۔ مختار کے سائے کا بھی پیچھا کرو گے بغیر اس کے کہ اسے پتہ چلے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مختار کوفے میں کہاں کہاں جا رہا ہے اور کس کس سے مل رہا ہے۔ جی اطاعت ہوگی۔ دوائی دینے والا خوشبو والی دوا ہے میرے پاس، دال چینی ہے میرے پاس، غمخوری اور معدے کی دوائیں ہیں میرے پاس۔ دوائی دینے والا خوشبو والی دوا ہے میرے پاس، غمخوری اور معدے کی دوائیں ہیں میرے پاس۔ وعلیکم السلام بانو۔ کون سا الیک سلیک؟ تم میرے شوہر کی توہین کیوں کر رہے ہو مختار؟ لفظہ میں اتنے خوش ہو کر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھی انسان ہیں اور اپنے سر پہ سایہ مانگتے ہیں۔ 1 سال بعد جب آپ کے گھوڑے کا رخ کوفہ کی طرف ہوا ہے تو تمام کوفے کا کونا کونا چھاڑ مارا۔ آخر میں سر کا صدقہ اتارنے کی طرح ہماری طرف چلے آئے تاکہ کہیں لوگ یہ نہ سوچے کہ مختار ایک جابر شخص ہے اور دونوں بیویوں میں فرق رکھتا ہے۔ یقیناً تمہیں سلیمان کے گھر میں معاویہ کی موت پر عیش و عشرت کے لیے دعوت ہوگی۔ نہیں بانو، کسی کی موت پر چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو عیش و عشرت کرنا کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ مجھے دعوت اس بات کی تھی کہ معاویہ کے بیٹے یزید علیہ اللعنہ کے خلاف قیام کا علم لہراؤں۔ پھر ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ آپ اچھی طرح سے پیش آئیے، آپ کا حصہ زیادہ ہو جائے گا۔ جب عمرہ آئی تو میں نے سوچا کہ عمومی فرما روا کی بیٹی آئی ہے، وہ مختار کی ان علوی حرکتوں کو روکے گی۔ کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ تمہاری آل امیہ سے دشمنی ہمارا کھانا خراب کر دے گی۔ بابا سپاہی، سپاہی حاکم کوفہ کی طرف سے بلائے گئے ہیں۔ بسم اللہ، یہ ہمارے خوف و ہراس کے قاصد آ گئے۔ تم سمجھتے ہو کہ نعمان کے